پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اس وقت ہم تیسری جماعت کا اردو پڑھیں گے اور اس میں آج ہم نے ٹاپک لیا ہے جس کا نام ہے ہمارے کھیل۔ ہماری کتاب کا یہ سبق نمبر 6 ہے۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 33 ہم نکالیں گے اور وہاں سے شروع کریں گے۔ کچھ لفظ یہاں پر دیے گئے ہیں اوپر: کشتی، لگ بھگ، تعلقات، رواج، مقبول ہیں۔ پیارے بچوں، میں پڑھوں گا اور آپ بھی اپنی کتاب نکالو گے اور ساتھ ساتھ آپ بھی رپیٹ کرو گے۔ ہمارے کھیل۔ انسان ہمیشہ سے کھیل کود کا شوقین رہا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ کھیل بھی بدلتے رہے ہیں۔ شروع میں انسان جنگلوں میں رہتا تھا۔ اس کی گزر بسر جنگلی پھلوں اور جانوروں کے شکار پر تھی۔ اس زمانے میں وہ تیر سے جانوروں کا شکار کرتا تھا۔ تیر اندازی اس کا کھیل تھا۔ جیسے جیسے انسان کی زندگی میں تبدیلیاں آتی گئیں، کھیل بھی بدلتے گئے۔ ہمارے ملک میں بھی کھیلوں کا رواج ہمیشہ سے رہا ہے۔ ہمارے یہاں پہلے کشتی، کبڈی اور گلی ڈنڈا جیسے کھیلوں کا رواج تھا۔ کشتی کے مقابلے ہوتے تھے۔ ایک پہلوان دوسرے پہلوان کو پچھاڑنے کی کوشش کرتا تھا۔ کبڈی اور گلی ڈنڈا میں دو ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوتا تھا۔ یہ کھیل ہمارے ملک میں آج بھی کہیں کہیں کھیلے جاتے ہیں۔ دوسرے ملکوں سے ہمارے تعلقات بڑھے تو وہاں کے بہت سے کھیل ہمارے یہاں کھیلے جانے لگے۔ ان میں سے کچھ کھیل بہت مقبول ہیں، جیسے کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، والی بال اور ٹینس وغیرہ۔ ہاکی میں تو لگ بھگ 30 سال تک کوئی ملک ہم سے نہیں جیت سکا اور آج بھی ہماری ہاکی ٹیم دنیا کی مشہور ٹیموں میں سے ایک ہے۔ کرکٹ میں بھی ہم نے بہت نام پیدا کیا ہے۔ ہماری ٹیم نے 1983 میں کرکٹ کا عالمی کپ جیتا ہے۔ ٹینس میں حیدرآباد کی جوان سال کھلاڑی ثانیہ مرزا نے ہندوستان کا نام دنیا بھر میں روشن کر دیا۔ انہوں نے 2003 میں 16 سال کی عمر میں ومبلڈن میں گرینڈ سلیم اعزاز حاصل کیا، جو ہندوستان کی کھیل کود کی تاریخ میں کسی خاتون کو ملنے والا پہلا اعزاز ہے۔ کھیلوں کی اہمیت اب اور بھی بڑھ گئی ہے، کیونکہ ان کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ میل جول اور بھائی چارہ پیدا کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ تو بچوں، ابھی میں نے یہ سبق پڑھا۔ اب میں اس کے معنی آپ کو بتاؤں گا۔ ہمارے کھیل۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے ہم مختلف کھیل کھیلتے ہیں، جیسے کرکٹ، گلی ڈنڈا، کبڈی، والی بال، فٹ بال، ٹینس، کیرم بورڈ، مختلف کھیل ہم کھیلتے ہیں۔ انسان ہمیشہ سے کھیل کود کا شوقین رہا ہے۔ یہ جو انسان ہے، اس نے ایک شوق پال رکھا ہے۔ جب بھی یہ کسی کھیل کا نام سنتا ہے تو فٹ یہ دوڑنے لگتا ہے کہ مجھے یہ اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ مجھے فلانی کھیل کھیلنا ہے۔ یعنی یہ جو انسان ہے یہ ہمیشہ سے کھیل کود کا شوقین رہا ہے۔ اگر آپ سے بھی کہا جائے زیادہ پریفرنس، اگر آپ لوگ بھی زیادہ پریفرنس کھیل کود کو ہی دیتے ہو۔ وقت کے ساتھ ساتھ کھیل بھی بدلتے رہے۔
वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे खेल कूद भी बदलते रहे। पुराने ज़माने में हम एक किस्म के खेल खेला करते थे, आज दूसरे किस्म के खेलों में लगे हुए हैं। शुरू में इंसान जंगलों में रहता था। शुरू में ये जो इंसान है ये जंगलों में रहता था। इसका घर, खाना पीना, उठना बैठना सब कुछ जंगलों में ही होता था। उसकी गुज़र बसर जंगली फलों और जानवरों के शिकार पर थी। ये इंसान अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारता था, इसका खाना पीना, ये जंगली जानवरों का शिकार करता था। इसका उठना बैठना, शिकार करना, जंगली जानवरों का शिकार करना, जंगली फल खाना, इन्हीं चीज़ों से इंसान अपनी ज़िंदगी का गुज़र बसर कर रहा था। उस ज़माने में वो तीर से जानवरों का शिकार करता था। इस पुराने ज़माने में जब इंसान जंगलों में रहता था, ये क्या करता था, ये तीर से जंगली जानवरों का शिकार करता था, जंगली जानवरों को हलाक करता था, मारता था तीर से। तीर अंदाजी उसका खेल था। ये तीर चलाना उन दिनों उसने अपना एक खेल बना रखा था। जानवरों का शिकार भी करता था उस तीर अंदाजी से, और उससे अपना खेल भी मानता था। जैसे जैसे इंसान की ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आती गई, वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान की ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आती गई, खेल भी बदलते गए, उसके खेल भी बदलते गए। उसने नए नए खेल भी सीखे, नए नए खेल खेलने भी सीखे। हमारे मुल्क में भी खेलों का रिवाज हमेशा से रहा है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान में भी ये जो खेलों का रिवाज है, खेलों का रस्म है, खेलों का चलन है, बहुत पुराने ज़माने से चलता आ रहा है। हमारे यहाँ पहले कुश्ती, कबड्डी और गुल्ली डंडा जैसे खेलों का रिवाज था। पहले कौन कौन से खेल यहाँ पर खेले जाते थे, जैसे कुश्ती, कबड्डी और गुल्ली डंडा। यही खेल यहाँ पर पहले पुराने ज़माने में खेले जाते थे। कुश्ती के मुकाबले होते थे। जिस तरह आज क्रिकेट का मैच खेला जाता है, वॉलीबॉल या फुटबॉल का मैच खेले जाते हैं, टूर्नामेंट, बहुत सारी टीमें खेल में हिस्सा लेते हैं, फिर जो जीतती है उसको इनाम दिया जाता था। पुराने ज़माने में इसी तरह ये जो कुश्ती है, कुश्ती के मुकाबले होते थे। कुश्ती का खेल क्या है, इसमें दो पहलवान आपस में लड़ते हैं। एक पहलवान दूसरे पहलवान को पिछाड़ने की कोशिश करता था। तो इसमें जब दो पहलवान आपस में लड़ते हैं, एक पहलवान दूसरे पहलवान को कमज़ोर करने की कोशिश करता है, यानी अपने आप को ताकतवर साबित करने की कोशिश करता था। कबड्डी और गुल्ली डंडे में दो टीमों के दरमियान मुकाबला होता था। और ये जो कबड्डी और गुल्ली डंडा है, इसमें क्या होता था, दो टीमें होती थी, उन दो टीमों के दरमियान मुकाबला होता था। ये खेल हमारे मुल्क में आज भी कहीं कहीं खेले जाते हैं। ये जो कुश्ती, कबड्डी, गुल्ली डंडा, ये खेल आज भी हमारे मुल्क में कहीं कहीं पे खेले जाते हैं। दूसरे मुल्कों से हमारे ताल्लुकात बढ़े। जब हमने दूसरे मुल्कों के साथ उठना बैठना शुरू किया, आना जाना शुरू हुआ, तो क्या हुआ, तो वहाँ के बहुत से खेल हमारे यहाँ खेले जाने लगे। तो उन मुल्कों में जो खेल खेले जाते थे, तो वो भी हमारे मुल्क में खेलने शुरू हो गए। इनमें से कुछ खेल बहुत मकबूल हैं, और ये जो दूसरे मुल्कों से खेल हमारे मुल्क में खेलने लगे, ये जो दूसरे मुल्कों का खेलना हमारे मुल्क में शुरू हुआ, तो उन खेलों में से बहुत सारे खेल मशहूर हैं, जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल और टेनिस वगैरह। ये जो कुछ खेलों के नाम हैं, ये बहुत मशहूर है। अगर हम नज़र डालेंगे, हर जगह हर रोज़ क्रिकेट कहीं ना कहीं किसी न किसी टीम का मैच होता है। किसी न किसी मुल्क में मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स खेले जाते हैं, मुख्तलिफ मैचेस का इनेकाद हो रहा है। हॉकी में तो लगभग 30 साल तक कोई मुल्क हमसे नहीं जीत सका। और ये जो हॉकी का खेल है, ये खेल हमारे मुल्क में बहुत मशहूर है। लगभग 30 सालों से हमारे मुल्क से कोई टीम, कोई मुल्क
नहीं जीत सका। कौन से खेल में? हॉकी के खेल में हम से, हिंदुस्तान से कोई मुल्क नहीं जीत सका। और आज भी हमारी हॉकी टीम दुनिया की मशहूर टीमों में से एक है, और आज भी ये जो हिंदुस्तान की हॉकी टीम है दुनिया की मशहूर टीमों में से मानी जाती है। क्रिकेट में भी हमने बहुत नाम पैदा किया। क्रिकेट के खेल में भी हम बहुत आगे निकल चुके हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी टीमें मशहूर है। हमारी टीम ने 1983 ईस्वी में क्रिकेट का आलमी कप जीता है। 1983 में हमारी क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता है, जिसमें बहुत सारे दुनिया के तमाम ममालिक हिस्सा लेते हैं, और उन तमाम ममालिक में से हमारे हिंदुस्तान ने वो ट्रॉफ़ी जीती है 1983 ईस्वी में। टेनिस में हैदराबाद की जवां साल खिलाड़ी सानिया मिर्ज़ा ने हिंदुस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर दिया। और दूसरा खेल जो है टेनिस, तो हमारी मुल्क की जो जवां साल खिलाड़ी है हैदराबाद की रहने वाली है, इसका नाम है सानिया मिर्ज़ा। उसने हिंदुस्तान का नाम बहुत मशहूर किया। उन्होंने 2003 ईस्वी में 16 साल की उम्र में विंबलडन में ग्रैंड स्लैम एजाज़ हासिल किया। तो उन्होंने क्या किया, 2003 में उन्होंने जब 16 साल की ही थी वो, तो उसने क्या किया, विंबलडन में उसने एक अवार्ड हासिल किया, ग्रैंड स्लैम एजाज़, जो हिंदुस्तान की खेल कूद की तारीख़ में किसी खातून को मिलने वाला पहला एजाज़ है। ये वो अवार्ड था जो हिंदुस्तान के खेल कूद में किसी औरत को मिलने वाला पहला एजाज़ था। खेलों की अहमियत अब और भी बढ़ गई है। तो दिन ब दिन वक्त गुजरने के साथ साथ खेलों की अहमियत बढ़ती जा रही है, क्योंकि इनके ज़रिए एक दूसरे के साथ मेल जोल और भाईचारा पैदा करने में भी मदद मिलती है। क्योंकि इन खेलों की वजह से हम एक दूसरे के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बना रहे हैं, एक दूसरे के साथ मेल जोल बेहतर बना रहे हैं, और हमें भाईचारा कायम करने में भी मदद मिल रही है। इसके अलावा ये जो खेल है ये हमारे सेहत के लिए भी बहुत मुफीद हैं, क्योंकि इनसे हमें एक्सरसाइज मिल रही है। हमारे जिस्म की वर्जिश भी हो रही है, और हम डिसिप्लिन भी सीख रहे हैं इन डिफरेंट खेलों को खेलने में। तो ये जो मुख्तलिफ़ खेल है हमें खेलने चाहिए। खेलने के साथ साथ हमें अपनी किताबें भी खोलनी चाहिए। खेलों के साथ ही नहीं रहना चाहिए, किताबें भी खोलनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस सबक से हमें यही सबक मिलता है कि खेल पढ़ने के साथ साथ खेल भी हमारे लिए बहुत अहम है। इनसे भी हमें फ़ायदा मिलता है, सबक पढ़ने से भी फ़ायदा मिलता है। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे दोनों चीज़ों को आगे बढ़ाने में। अपना सबक भी, अपना ये जो इल्म है ये भी पढ़ेंगे, ये भी जारी रखेंगे, और मुख्तलिफ़ खेल्स में, मुख्तलिफ़ गेम्स में भी हिस्सा लेंगे। तो इंशाअल्लाह जो कल दूसरा क्लास होगा उसमें हम इसके सवालात के जवाबात लिखेंगे। तब तक आप ये जो मैंने सबक अभी पढ़ा है इसके मायने भी बताए हैं, इसको आप फिर रिपीट करना और इसको समझने की कोशिश करना। जब तक नया क्लास लेकर आएंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।